Namaste everybody. This is Sarvesh Sharma and you are reading with us poetry section. I hope you will be fine at your places. In previous class we read about the poet and about the poem, about the theme of poem, etc. And in last classes we read 4 lines of the poems. We have known up to now that there is Alfonso II, Duke of Ferrara. He got murdered his wife, and a messenger envoy came to him with the marriage proposal. Okay, this poem, my last touches, is a dramatic monologue. What is dramatic monologue? We have discussed. Dramatic is a poem in which speaker and there are so many passive listeners. In this poem, Duke of Alfonso II is a speaker and messenger is a listener. Okay, हमने अब तक ये पढ़ा कि जो अल्फांसो सेकंड है वो अपनी पत्नी का मर्डर करवा देता है। अब उसके पास मैसेंजर एनवॉय शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। हमने अबाउट द पोएम के बारे में भी जाना। हमने कुछ लाइन्स भी पढ़ी थी। इसमें सिचुएशन क्या है, मैंने सिचुएशन भी आपको बताई थी। सिचुएशन की बात करें तो एक विंडो है, ये सॉरी गैलरी है। गैलरी के दीवार पर पोर्ट्रेट लगा हुआ है। पोर्ट्रेट मीन्स अ पिक्चर। उस पर कर्टेन है, एक पर्दा लगा हुआ है। जैसे एक इमेजिनरी बनाते हैं यहाँ पर हम। सपोज दैट इज अ गैलरी एंड हियर इज ए picture of his late wife, and there is a curtain. Here is Alfonso II and here is messenger envoy. हमने जाना कि पिक्चर की तरफ, सपोज that is a wall and there is a picture and that is covered with a curtain. Alfonso II speaker remove the curtain. Try to understand each and every word patiently and carefully. Try to understand. Alfonso II, the speaker, remove the curtain. As he removes the curtain, picture came out. Picture and that was now visible. Alfonso II pointing, we have read it in our previous class, pointing towards the picture. Alfonso II pointing towards the picture says that is my last duchess painted on the wall. Pointing towards the picture, Alfonso II says to the envoy, the messenger, the passive listener, that is the picture of my late wife, Duchess Queen. That is the picture of my late wife, painted on the wall, which is established on the wall, looking as if she were alive. This picture, due to its pictorial quality,
seems that this picture seems as if it were alive. In this picture, the picture seems as if it were alive. Looking as if she were alive, I call that in this picture my late wife seems as if she were alive. That makes I wonder now. Alfonso II, considering the beauty, the pictorial quality of the picture, says that piece a wonder. Says the picture a piece of wonder. This picture wonders him, astonished him, fascinated him, and Fra Pandolf. He mentions here, Alfonso II mentions a painter, an imaginary artist, Fra Pandolf. We discussed it in our previous classes. Fra Pandolf was a imaginary Fra Pandolf is an imaginary artist and he was a monk. There was a single story behind the monk character I have told you. Okay, work busily a day and there she stand. Alfonso II says that whole day without taking any rest. Fra Pandolf works all the day, and result of this hard work, result of this complete work, this picture stand here. Okay, अब तक हमने यहाँ तक की चीजें पढ़ ली थी. इससे आगे बात करें, पहले हम हिंदी में बात करेंगे, फिर इसे अंग्रेजी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे. लोग देखिए, will it please you sit and look at her? Will it please you sit? कृपया तुम यहाँ बैठोगे. देखिए, हमारा जो तरीका रहेगा वो हम आपको बता देते हैं. आपके प्रीवियस टीचर्स ने कैसे पढ़ाया आई डोंट नो, लेकिन मैं जो लिटरेचर का एक रूरल स्टूडेंट्स के तरीके से विचार करता हूँ तो मस्तिष्क में आता है चीज़ें कि हमारा जो वे होगा वो सिंपल होगा. पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स को देखेंगे, वन बाय वन लाइन देखेंगे, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे और हिंदी अनुवाद के बाद उसकी अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन करेंगे. ओके, जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं जो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स, उनको देखेंगे. जो इस वर्ष आने हैं, जो एक्सप्लेनेशन आने हैं, उनको हम आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन लिखाएंगे. ओके, अब आपको प्रीवियस टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, अगर कोई स्टूडेंट मुझे जानता है तो कॉल मी, और मुझे थोड़ा सा उनके पैटर्न के बारे में अगर पता लगेगा तो मैं उसमें कोशिश करूंगा कि उनका तरीका ठीक था या फिर ऐसे. मेरे हिसाब से दैट इज द बेस्ट वे. पहले हम हिंदी में जाने, उसके बाद उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे. देखो, will it please you sit and look at her? Will it please you sit? क्या तुम कृपया बैठोगे? देखो, इस सेंटेंस में निवेदन जैसा प्रतीत होता है, यूज ऑफ प्लीज, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट का है, लेकिन जो उसका लहजा है बात करने का वो एक ऑर्डर का है. Will it please you sit and look at her? क्या तुम यहाँ बैठोगे और इसकी तरफ देखोगे? किसकी तरफ? एट द पिक्चर. क्या तुम यहाँ बैठोगे? इसमें निवेदन स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट है, स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट है, लेकिन मीनिंग इसका ऑर्डर है. सो मेनी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, जैसे आई वांट टू नो योर फोन नंबर, आई वांट टू नो योर नेम. ओके, जब मैं कहता हूं आई वांट टू नो योर नेम, इसका स्ट्रक्चर तो कैसा है? असर्टिव है, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? इंटरोगेटिव का है, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं. इसी तरह से जो ये जो है, इसमें जो सेंटेंस है ये तो निवेदनात्मक है, रिक्वेस्ट का है, लेकिन इसमें वस्तुतः उसकी मंशा जो है, उसका तरीका जो है कहने का, वो एक ऑर्डर का है. विल यू प्लीज सिट एंड लुक एट हर? आई सेड, मैं कहता हूं आप यहां बैठो और उसकी तरफ देखो. ओके,
यहां तक की हिंदी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब आगे आगे हम आगे पूरे काम करेंगे। फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रेड। फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, क्या आप फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा निर्मित इस डिजाइन को देखने के लिए कृपया यहां बैठोगे? फ्रा पेंडोल्फ, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा डिजाइन की हुई इस कृति को, इस पिक्चर को देखने के लिए क्या तुम यहां बैठोगे? फॉर, क्योंकि नेवर रेड स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेनेंस। नेवर रेड स्ट्रेंजर लाइक यू, कभी नहीं देखा। स्ट्रेंजर क्यों है? अपरिचित, अजनबी। स्ट्रेंजर फॉर, क्योंकि, फॉर, बिकॉज। यहां फॉर का मतलब क्या है? बिकॉज। फॉर, क्योंकि नेवर रेड स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेनेंस, क्योंकि कभी नहीं देखा दैट स्ट्रेंजर, अजनबी लोगों ने, लाइक यू, तुम्हारे जैसे, क्योंकि तुम्हारे जैसे अजनबी लोगों ने कभी नहीं देखा दैट पिक्चर काउंटेनेंस। दैट पिक्चर काउंटेनेंस, इस तस्वीर की काउंटेनेंस को, काउंटेनेंस मींस कंप्लेक्शन ऑफ फेस, कंप्लेक्शन ऑफ फेस, चेहरे का रंग। कंप्लेक्शन मींस, काउंटेनेंस मींस कंप्लेक्शन, कलर, ह्यू। काउंटेनेंस, कंप्लेक्शन ऑफ फेस। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स earnest glance, the depth and passion। depth and passion का मीन्स है फीलिंग एंड डिजायर। देखो, वर्ड मीनिंग आप सदैव इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या होगा, आपका वोकेबुलरी जो है वो थोड़ा एनहांस होगा। ठीक है, हिंदी हम अनुवाद करा रहे हैं क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो जानते हैं कि आगे छात्रों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। आप आराम से पढ़ें, कुछ दिन में सारी चीजें सही से समझ में आने लगेगी। द डेप्थ एंड पैशन, फीलिंग एंड डिजायर ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, ग्लांस, हेलो, इसके देखने पर इसकी जो फीलिंग्स और डिजायर है, इसकी जो डेप्थ और पैशन है ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, बट to myself they turn stranger like you, तुम्हारे जैसे अजनबी ने कभी नहीं देखा that picture countenance, इस तस्वीर के रंग को, चेहरे के रंग को, depth and passion of earnest glance, प्रारंभिक, शुरू में एक बार देखने से, झलक देखने से, glance में stinge, आलो, have a look, इसमें लुक देखने से उसकी earnest feeling और desire को पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तुम्हारे जैसे अजनबियों ने इस तस्वीर के रंग को, इस तस्वीर में उपस्थित चेहरे के रंग को इससे पहले कभी नहीं देखा। The depth and passion of its earnest glance, but to myself they turn, since none puts the curtain I have drawn for you, but I, the depth and passion of its earnest glance, इस तस्वीर को देखने से जो डिजायर और फीलिंग्स प्रतीत होती हैं, उसको देखने से, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, इसको देख करके, अर्नेस्ट ग्लांस, पहले ही नजर में एक बार लोग देखने पर जो उनकी फीलिंग्स और डिजायर होती हैं, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, वो मेरी तरफ मुड़ना चाहते हैं। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, वे मेरी तरफ मुड़ते हैं और मुझसे पूछना चाहते हैं, किसके बारे में? उस तस्वीर में उपस्थित फीलिंग्स और डिजायर के बारे में। द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन, क्योंकि, मुझसे ही क्यों पूछना चाहते हैं उसके बारे में? बिकॉज, सिंस, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज नन पुट बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, कोई भी व्यक्ति, बट, सिंस, क्योंकि, नन पुट बाय द कर्टेन,
कोई इस पर्दे को नहीं हटाता है, सिंस नन पुट बाय द कर्टेन, कोई इस पर्दे को नहीं हटाता है, आई हैव ड्रॉन फॉर यू, जैसे मैंने तुम्हें हटाया है, बट आई सिवाय मेरे, बट आई हैव ड्रॉन फॉर यू, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इस पर्दे को हटा दिया है, इस प्रकार से इस पर्दे को और कोई नहीं हटा सकता सिवाय मेरे। एक बार फिर से देख लो। Will it please to sit and look at her? I said. Fra Pandolf I designed for never read. Stranger like you that picture calmness, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turn since they pass. Puts by the curtain I have drawn for you. But okay. लेखक जो पोएट है, स्पीकर जो है यहाँ पर अल्फोंसो सेकंड, वो कहता है कि आप कृपया यहाँ बैठ जाइए और फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा निर्मित इस तस्वीर को गौर से देखिए। ओके, क्योंकि इस तस्वीर को तुम्हारे जैसे अजनबियों ने पहले कभी नहीं देखा है। इस तस्वीर में उपस्थित जो रंग होता है, पिक्चर्ड काउंटनेस, उसके चेहरे का रंग जो है, उसको देख करके उनकी जो पहली भावनाएं आती हैं, अर्नेस्ट ग्लांस जो आता है, पहली बार देखने पर जो भावनाएं और डिजायर जागृत होती है, वो उसके बारे में मुझसे कारण पूछने की होती है। ओके, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, और वो इसे पूछने के लिए वो मेरी तरफ कोशिश करते हैं, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन, क्योंकि कोई पर्दा नहीं हटाता उनके लिए, जैसे मैंने तुम्हारे लिए पर्दा हटाया है इसे देखने के लिए, क्योंकि मेरे अलावा इस पर्दे को कोई नहीं हटा सकता। ओके, दैट इज इट्स हिंदी एक्सप्लेनेशन और मीनिंग। नाउ कम टू फॉर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। फ्रा पेंडोल्फ, in the manner of request he commands, Alfonso II, the speaker, in the manner of request commands to the envoy to sit and to have a look at the picture, and he says that nobody was able to look at this picture as you. No stranger, no cure was able to look at that picture, because that picture is completely covered, so none is able to look at this. Whenever they look at the picture, the first glance question comes to their mind, that from where this picture get that glance, that countenance, the complexion of face. But nobody was able, none has show courage to ask me this question, and nobody except me is able to draw the curtain from the picture, so that the people can see the picture. Okay, that is its English explanation. And next stanza is, that is your next stanza, next couplets. देखिए, that is important couplet. And seemed as they would ask me if they durst. First, देखें मीनिंग्स। and they seemed, ऐसा प्रतीत होता है, as they would ask me if they durst. That means dare to. and seemed, ऐसा प्रतीत होता है, and seemed, ऐसा प्रतीत होता है, they would ask me, वे मुझसे पूछना चाहते हैं, if they durst, अगर वो साहस करें, यदि उनमें साहस है, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता था जैसे वो मुझसे पूछना चाहते हैं। There,
How such a glance came there. This stanza shows the aristocracy thought of Renaissance period. ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में एक अरिस्टोक्रेसी थॉट आप निकल कर आएगी। एक बार हम करें इसको, फिर देखते हैं। How such a glance came there, मानो कि वो लोग, they means people, people who look at the picture, they, people who look at the picture, लोग जो उस तस्वीर को देखते हैं, and seemed as, ऐसा प्रतीत होता था, as मानो कि they would ask me, वे मुझसे पूछना चाहते हो, if they dust, अगर उनमें साहस होता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझसे पूछना चाहते थे। How such a glance came there, how such a glance, कैसे आया वो चमक, glance, tinge, कैसे आई वो चमक, came there, वहां पर, कहां पर, मैंने उसमें लास्ट में पिक्चर्ड काउंटेनेंस वर्ड आया है। अभी जो हमने स्टेंजा किया था उसमें पिक्चर्ड काउंटेनेंस, देखो यहाँ थोड़ा इस तरह पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर क्लास होती तो बेहतर हम ढंग से एक्सप्लेन कर पाते। हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, किस प्रकार से वो टिंज, वो झलक, वो कंप्लेक्शन उसके चेहरे पर आया। शो नॉट द फर्स्ट आर यू, ऐसा सोचने वाले तुम पहले नहीं हो, ऐसा अच्छा, ये जो लोग हैं मुझसे ऐसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से उसके गाल पर, उसके चेहरे पर वो चमक आई, वो लालिमा आई, कंप्लेक्शन आया। शो नॉट द फर्स्ट आर यू टर्न एंड आस्क दस, ऐसे तुम पहले हो, टू आस्क, पहले नहीं हो, वो भी पूछना चाहते थे, टू टर्न एंड आस्क दस, इस प्रकार से मेरी तरफ मुड़ करके ये पूछना चाहते हैं। It was not her husband presence only. That is the line. These are the words, her husband presence. These are the words which show the jealousy, the hypocrisy of the. ये जो शब्द हैं यहाँ थोड़ा आप देखिए, her husband's presence only called that spot. Sir, it was not her husband's presence only. That is the problem. ड्यूक के साथ यही प्रॉब्लम थी। उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करती थी। कोई अगर उसको एक पुष्प दे दे तो भी वो उतना ही खुश होती थी जितना कि बेशकीमती नेकलेस देने पर। माली अगर उसको कुछ दे दे, गार्डनर कुछ देता है तो भी उतनी प्रसन्न होती थी जितना पति उसको कुछ दे तो भी। मैंने सारी बातें पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताई, प्रीवियस क्लासेस में। हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, इट वाज नॉट, श्रीमान, ये जो उसके चेहरे पर जो चमक है ना, चेहरे पर जो टिंज है, कंप्लेक्शन है, रोजी मार्क्स है, इट वाज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंट ओनली, ये सिर्फ उसके पति की उपस्थिति से ही नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो केवल तभी चमक उसके चेहरे पर आती है, तभी ग्लांस आता है जब उसका पति उसकी उपस्थिति में होता है, ऐसी बात नहीं है। कॉल्ड दैट स्पॉट, जिसकी वजह से ये स्पॉट आते हैं, ये लाल स्पॉट मींस रोजी मार्क्स ऑन द चीक। यहाँ पर स्पॉट का मतलब है कि उसके चेहरे पर जो चीक पर जो रोजी मार्क्स हैं गुलाबी रंग के, उनके बारे में स्पॉट को किया गया है। ऑफ जॉय, प्रसन्नता में, कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय, जॉय मींस डिलाइट। कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय, ये प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई देते हो इनटू द डचेस चीक, उस क्यून के, मेरी जो लेट वाइफ थे उसके गालों पर। शायद, परहैप्स, शायद, ही वाज नॉट सर्टेन, शायद, परहैप्स, शायद उसके पति की ही उपस्थिति नहीं थी। कहता है सर, इट वाज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, ये वो लाइन है, दीज आर द वर्ड्स ऑन व्हिच दिस पोएम इज बेस्ड।
यही वो शब्द है जिनके ऊपर ये पूरी की पूरी जो पोएम है बेस्ड है। सर इट वाज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, ये सिर्फ उसके पति की ही उपस्थिति नहीं थी। कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक, जो लेकर के आते हैं उस रानी के गालों पर खुशी के स्पॉट, प्रसन्नता के चिन्ह, यानी कि स्माइल। ओके, और यही जो कारण है वो उसकी जेलसी का है। और इस पोएम को जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा दैट इज द ओनली रीजन दैट ही गॉट मर्डर्ड हिज वाइफ। यही एकमात्र ऐसा कारण है कि उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया। कौन सा? कि वो इस चीज से ईर्ष्यालु है कि इसको कोई कुछ भी देता है तो भी ये उतनी प्रसन्न हो जाती है जितनी कि मेरी उपस्थिति में होता है। हर व्यक्ति की उपस्थिति में उतनी प्रसन्न ये हो जाती है जितनी कि मेरी उपस्थिति में होती है। ये इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब हम इसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो फिर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखाएंगे, नहीं, एक्सप्लेनेशन तो बहुत बेहतर ढंग से लिखाएंगे क्योंकि एग्जाम में देना, लेकिन अंग्रेजी में भी थोड़ा आपको ये चीजें सिस्टम में आनी चाहिए। हिंदी इसके साथ साथ कुछ कुछ शब्द आने चाहिए, उसके हिसाब से हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। The poet says that Alfonso II, pointing towards the picture, says to the envoy, the messenger, the passive listener that, and seemed as they would ask me, he says that stranger who have a glance at the picture, they thought themselves that they want to ask some questions about the glance, about the tinge, about the complexion of his face. I think they want to ask me if they have courage, if they dare, they want to ask me a question from where this glance comes. Oh, how such a glance came there, so not the first are you to turn. He says that everybody who have glance at the picture want to ask a question to me that from where this glance, this beauty, this marks of joy comes at the cheek of Duchess. And in my view, I want to share my thought. I want to share my opinion that it was not only my presence, my Duke himself, the speaker, he says that it was not only my present that she gets the marks of happiness on her face, but also the presence of others when she get the marks of happiness on her cheek. Her husband presents only contact spot of joy into the Duchess' cheek. Perhaps, in my view, I thought that a simple things also makes her happy, as my presence makes her happy. And these lines shows the hypocrisy, the jealousy of Duke Alfonso II. In my view, these lines are the center theme of this poem. Okay? जो अल्फांसो सेकंड है उसको ऐसा लगता है कि केवल मेरे ही कारण उसके चेहरे पर प्रशंसा नहीं आती, बल्कि कोई भी उपस्थिति उसको प्रसन्नता प्रदान करती है. Due to this reason that everything, simplest, even the simplest things makes her happy, he got jealous, and in this jealousy he got the murder of her wife. Okay, ये हमारे आज के 3 स्टेंजास थे. अगले जो स्टेंजास होंगे वो अगली क्लास में होंगे. इसको 1-2 बार देखना. हम 1 बाय 1 करके एक स्टेंजा का व्याख्या कराएंगे, इसी तरह से हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, और फिर जो एग्जाम्स के लिए हैं
एग्जाम्स जो पिछले वर्ष को छोड़ के पहले 2-3 वर्ष में आए हैं, सारा पेपर कंप्लीट रूप से आपको लिखाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी लिखाएंगे। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत। अगली जो क्लास होगी उसमें इससे आगे के स्टैंडर्ड चलेंगे। एक बार पूरा इसको अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन हम आपको लिखाएंगे और क्वेश्चंस जिन जिन पोएम्स में से बन सकते हैं इस साल के आने के लिए वो भी हम आपको लिखवा देंगे, यहीं पर लिखवा देंगे, या अगर क्लासेस चालू होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम आमने सामने होते हैं तो इंटरेक्शन जो है वो बहुत अच्छा होता है, बजाय इस तरह से। ये तो एक पैसिव टीचिंग है, ना सामने स्टूडेंट है ना कोई है, तो अपना पूरा ढंग से पढ़ा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ओके, घर पर रहिए, कोरोना है तो सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग। थैंक यू।